ठीक है। तो आज के इस ऑनलाइन 10 दिवसीय विपस्सना स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज सिविलाइजेशन गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा की तरफ से ये ऑनलाइन 10 दिवसीय जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ये बहुत ही खुशी की और हर्ष की बात है कि आप घर बैठे अपने जीवन की कुछ वास्तविकता है उसको देखने का आपको मौका मिल रहा है। और इसमें हमारे विश्वविद्यालय की जो स्कूल है, स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी सिविलाइजेशन, उसके माध्यम से कोर्स का आयोजन किया जा रहा है। तो वैसे सुबह के सेशन में आप लोगों में से बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट थे। आज ऑफिशियली या इस इवनिंग सेशन में हम एक इनॉग्रल प्रोग्राम ऑफिशियली सेशन करने का हम आयोजन किए हुए हैं, ताकि आप हमारे जो अन्य फैकल्टी है या हमारे जो पैट्रॉन हैं या हमें जो सपोर्ट करने वाले जो टीम है, उनसे भी आप लोगों का परिचय हो सके। उनके विचार है, उनकी जो मोटिवेशन है, हमारे इस कोर्स को और प्रेरित कर सकती है, मदद कर सकती है। और इसलिए इस कोर्स का जो आज का इनॉग्रल प्रोग्राम है, हम अभी शुरुआत करते हैं। तो मैं सभी फैकल्टी जो हमारी डीन है डॉक्टर शिवसाई जी, प्रियदर्शिनी मित्रा जी, हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर है और ज्ञानादित्य शाक्य, और अन्य कोई फैकल्टी ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और हमारी जो डॉक्टर प्रियदर्शिनी मित्रा है, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम की आउटलुक और हमारे जो गेस्ट है, हमारे एचओडी, उनको वेलकम करते हुए कार्यक्रम का प्रारंभ करें। मित्रा, डॉक्टर मित्रा। Thank you, sir. हाँ, प्लीज वेलकम। I am audible? Yes, yes. Please continue. Okay. Good evening, all. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Respected Honorable Vice Chancellor, sir. Respected Dean, sir. Respected HOD, sir. Respected Coordinator, sir. And distinguished guests, esteemed faculty members, and dear participants. A very warm greetings to all of you. I am Dr. Priyadarshini Mitra, faculty of School of Buddhist Studies and Civilizations, Gautam Buddha University. It is my privilege to present the outline of this 10-day certificate course on Vipassana-based stress management. वही है ना Sorry. इसका मेरा ये I am the 10-day certificate course Vipassana-based stress management. The course has been thoughtfully designed by course coordinator Dr. Monish Sir with a clear structure, well-defined objectives, and meaningful learning outcomes, aiming to provide both theoretical understanding and practical transformation. This course is not merely academic. It is a transformative journey from awareness to inner peace. Today morning program. This is also saying that inner peace is very important thing. If we cannot achieve the inner peace, then never we can find anywhere the peace. So inner peace is most important things. And 10 days you will learn from our Monisha from that. It is very important for nowadays life. So this course is not merely academic. It is a transformative journey from awareness to inner peace. Over the span of 10 days, participants will gradually move from theoretical understanding to practical experience. On the initial days, participants will introduce to the conceptual foundation of Vipassana, its origin, philosophy, relevance in today's stressful and fast-paced life. We understand how the teaching of the Buddha addressed mental suffering
and provide a scientific method for self-observations. Self-observation is very important. All of you know that. As the course progress, emphasis will be laid on understanding the nature of mind and body, particularly how stress, anxiety, and emotional disturbance arise. Participants will explore the connection between thought, sensation, and reaction. From the middle phase of the course, the focus will shift towards practical training in mindfulness and meditation techniques. Step by step, participants will learn first awareness of breath, that is the anapana, and next observation of bodily sensations, and last cultivations of equanimity. These, these practices will help in developing self-discipline, concentration, and emotional balance. In the later days, the course will emphasize the applications of vipassana in daily life. Participants will learn how to manage stress effectively, respond rather than react, develop compassion, patience, and clarity of mind. By the end of these 10 days, the participants are expected to gain a deeper understanding of the mind, practical tools for stress management, and a path towards inner peace and self transformations. Okay, then the you will participants you will learn ultimately what is that is the deeper understanding of the mind, practical tools for stress management, and a path towards inner peace and self transformation. Thus, this course is not just about learning a technique, it is about expressing a way of life rooted in awareness, balance, and wisdom. Okay, thank you, all of you. I think it is clear to all of you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Manish sir. And now I would like to our head sir for delivering his welcome address. नाम लेके कॉल करिए मैम। ज्वाइनिंग है कि शिव साई जी ज्वाइनिंग है? Shiva sir. Am I audible? हाँ sir, audible. Okay, thank you. सभी अपनी वीडियो ऑन रखें, सभी अपनी वीडियो ऑन रखें प्लीज। Good evening, all of you. Respected deans, distinguished speakers, esteemed the colleagues and the participants and friends. A very warm welcome and all of you. It is indeed matter of great honor to join gather today for this insight program, the Vipassana based stress management for 10 days. In the age of marked by rapid technological development and advancement, intense competition and the constant mental engagement, stress is one of the important become almost it is inseparable in part of every human in the modern life. Therefore, it is both timely and essentially that we turn towards ancient wisdom traditions that offer propound the solution to contemporary challenges. In the new days, in the 21st century era, we are still based on the following of Vipassana. Vipassana, the history concerned, is that 2560 years ago, is the most ancient meditation technique. It was rediscovered and taught by Gautam Buddha. It's not merely method of meditation, but it is a way self-transformation through self-observation. So, the term Vipassana means seeing things as they really they are. It enables individuals to develop mindfulness, emotional balance, and clarity of thoughts.
to the qualities that are essential for managing stress effectively. So, in contrast to external solutions, of course, Vipassana directs to inward. It teaches us to observe, our breath, our sensation, our mental patterns without reaction. So, the total Vipassana process, we began to understand the root causes of stress, our craving, aversion, and unconsciousness reaction. After gradually learn to respond the life's situation with equanimity and wisdom. In the modern days, everyone have facing the many problems. So due to cause of the stress, they are facing the psychological, psychosomatic, and many problems due to cause of the stress. So I think this program, the 10 days, will aim to introduce how to explore how Vipassana can serve as a powerful tool for stress management in our daily lives. Whether one is a student or the researcher or the common man or the professional or the administrator, the practice of mindful awareness can enhance not only personal well-being but also professional efficiency and harmonious relationship. I think I am confident that this session will go ahead, will provide valuable insights and practical guidance for all of us. I encourage each participant to engage actively, reflect deeply, and embrace this opportunity for inner growth. On behalf of our organizing team, I extend my sincere gratitude to our esteemed the faculty and the guests for their presence and contribution with theoretical as well as practical. So I think all the participants for being part of this meaningful journey. Let us begin this our program with a open mind and calm heart. So thank you, Manal. Thank you. मनीष जी क्या हुआ? Monish ji, come. शांति कैसे? पाँच मिनट का ध्यान करते हैं मेडिटेशन, और उसके बाद में फिर हम इनॉग्रल सेशन को हम एंड करते हैं। 5 मिनट का हम ध्यान करते हैं। 5 मिनट्स मेडिटेशन प्रैक्टिस, मेत्ता भावना, और उसके बाद हम इस इनॉग्रल सेशन को वोट ऑफ थैंक्स से हम पूरा करते हैं। और उसके बाद जो समय रहेगा उसमें हम एक सेशन लेने वाले हैं, जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हम आधा घंटा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए। धीरे धीरे अपनी शरीर को शांत करते हुए सांस को ध्यान से देखें। सांस आ रही है, जा रही है। जिस प्रकार से सांस हमारे लंग्स में स्पर्श कर रही है, उसी प्रकार से वो हृदय को भी स्पर्श कर रही है। जैसे ही हृदय को स्पर्श हो रही है, कुछ भावनाएं, कुछ विचार, कुछ कल्पनाएं हमारे हृदय में हम महसूस कर रहे हैं कि मैं खुश हूँ, निरोगी हूँ,
आनंदित हूँ, शांत हूँ, महसूस करिए। अपने मैं से, अपने शुद्ध भाव से जुड़ने का प्रयास करें। जैसी सांस हमारे शरीर के हर एक अंग को जोड़ती है, वैसे ही भावनाएं भी जुड़ती है। हृदय की शुद्ध भावनाएं, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एनर्जी, वही मैत्री है। शुद्ध भावना से जुड़ना ही मैत्री है। जो भी हम में शुद्धता है, अच्छाई है, हमने किए हुए अच्छे कर्म हैं, अच्छे गुण हैं, अच्छे विचार हैं, उससे जुड़ते जाइए। उसी का चिंतन करें, उसी की कल्पना करें, उसी के साथ बने रहें कि मैं अच्छा हूँ, मैं सुखी हूँ, आनंदित हूँ। ये शब्द आपके हृदय तक पहुँच रहे हैं। जैसी सांस पहुँच रही है, वैसे ही आपकी भावनाएं आप तक पहुँच रही है। इसी शुद्ध भाव का आनंद लेते हुए यहाँ पे जो पार्टिसिपेट है, अलग अलग जगह से, अलग अलग परिवार से, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग प्रांत से जुड़े हुए लोग हैं, उनके हृदय में भी यही भावना है, सुखी होने की और दुखों से मुक्त होने की। महसूस करें उनकी भावनाओं को और मैत्री करें कि वो भी सुखी हो, दुखों से मुक्त हो। और मैत्री का विस्तार करें। हमारे घर के लोग, परिवार के रिश्तेदार, पड़ोसी, इस हमारे शहर के लोग, देश के लोग, सभी भारतीय सुखी हो रहे हैं, दुखों से मुक्त हो रहे हैं। जितनी हमारी शुद्ध भावना है, हर मनुष्य तक पहुंच रही है, क्योंकि हर एक मनुष्य यही चाहता है कि मैं सुखी हूँ, दुखों से मुक्त रहूं। इसी भावनाओं को बढ़ाते बढ़ाते संसार के सभी जीव मात्रा तक पहुंच जाइए। भले हमारा हृदय, हमारा शरीर यहाँ पर है, लेकिन हमारा मन आकाश की तरह विशाल होते जा रहा है और हमारी भावनाओं में सभी जीव मात्र समावेश हो रहे हैं। सभी की कल्याण और सुख की भावना हम कर रहे हैं कि सभी सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि शुद्ध भावना है, सभी से जुड़ने की, सभी को एक समान देखने की, सभी का कल्याण करने की। सबे सता सुखी होन्तु, सबे सता सुखी होन्तु, सबे सता सुखी होन्तु। साधु साधु साधु। तो इस मैत्री भावना और मैत्री मंत्र के साथ ही
हम अंतिम पड़ाव या इस इनॉग्रल के प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच गए हैं और हम सभी के ओर से मैं डॉक्टर ज्ञानादित्य जी को विनंती करता हूं कि इस इनॉग्रल प्रोग्राम का वोट ऑफ थैंक्स से उसका वोट ऑफ थैंक्स करें। ज्ञानादित्य जी। धन्यवाद मनीष जी। अ, जैसा कि बताया, मैं डॉक्टर ज्ञानादित्य साक्य इसी डिपार्टमेंट में स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज एंड सिविलाइजेशन है, उसी में हम लोग साथ में सहकर्मी हैं सभी लोग। तो इससे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापन करूं, एक छोटी सी एक बात कहूँगा कि सबसे पहले तो ये जो 10 डेज का ऑनलाइन प्रोग्राम है स्ट्रेस विपස්සना स्ट्रेस बेस्ड मैनेजमेंट, उसमें सभी लोग आप लोग जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत आप बधाई के पात्र हैं, सभी का स्वागत है। और हमें पूरा आशा है, पूरा विश्वास है कि इस कोर्स से आप लोगों को कुछ न कुछ लाभ जरूर होगा, क्योंकि जीवन में हमारे जो मन है, चित्त की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बुद्ध ने कई बार मन के बारे में, चित्त के बारे में समय समय पर उपदेश दिया है। और अगर हम बुद्ध के अभिधर्म को पढ़ते हैं तो 4 अभिधर्म जो कहे गए हैं, 4 परमार्थ धर्म, उसमें मन को सबसे पहला स्थान दिया गया है और मन को भी एक इंद्रिय के रूप में स्वीकार किया जाता है कि जो 5 इंद्रियां हैं उनको नियंत्रित करने वाला व्यक्ति का मन ही होता है। तो मन को एक तरह से सिक्स्थ सेंस के रूप में भी कंसीडर किया जाता है। और इसके बारे में चित्तवग्ग धम्मपद में एक बड़ी प्यारी गाथा मिलती है कि बुद्ध ने कहा है, खंदनं चपलं चित्तं दुरखं दुर्निवारयन् उजुं करोति मेधावी उसुकारोव तेजना। यानी जो मन की प्रवृत्ति बुद्ध ने बताने का प्रयास किया कि जो व्यक्ति का चित्त है, मन है, वो बहुत ही चंचल है, एक जगह वो स्थिर नहीं रहता है, हमेशा इधर उधर भटकता रहता है अन्य आलंबनों पर। जैसे बंदर जो है एक डाल से दूसरी डाल पर हमेशा जाता रहता, दौड़ता रहता, लटकता रहता, उसी तरीके से हमारा मन भी एक जगह स्थिर नहीं रहता है। और इसको दुरक्षण यानी इसकी रक्षा कर पाना, इसको प्रोटेक्ट कर पाना भी बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। लेकिन जो व्यक्ति मेधावी होता है, बुद्ध ने कहा कि उजुम करोति मेधावी, लेकिन जो समझदार प्रज्ञावान व्यक्ति है, मेधावी है, यानी जो चतुर व्यक्ति है, जो ये जानता है कि अच्छे मन का, कुशल चित्त का क्या लाभ है, अकुशल चित्त का क्या नुकसान है, ऐसा ज्ञान रखने वाला जो मेधावी पुरुष है, वो इस मन को उसी तरीके से सीधा करता है जिस तरीके से बाण बनाने वाला व्यक्ति बाण को धीरे धीरे सीधा करता है। तो जो बुद्ध की पूरी हम शिक्षाओं को देखते हैं तो उसका जो सारांश हम कहेंगे तो 3 चीजों पर ही निहित है। उसमें है कि कुशल कर्म, जितने भी अकुशल कर्म हैं, यानी सब पापस अकर्णन, बुरे कर्म ना करना, अच्छे कर्मों का संपादन करना, और तीसरी जो चीज है वो है सचित्त परियोधपना, यानी चित्त की पूर्ण परिशुद्धि। तो वो परिशुद्धि जो है, मन की परिशुद्धि, मन को शुद्ध बनाना, निर्मल बनाना, जो भी बैड मेंटल फैक्टर्स हैं, बैड थॉट्स हैं, बैड आइडियाज हैं, जो अकुशल चेतसिक हैं, उनको किस तरीके से हम उनको मतलब उन पर अंकुश लगा के हम कुशल चित्तों का उत्पाद कर सकते हैं, उसी पर बुद्ध की पूरी शिक्षाएं टिकी हुई हैं। तो उसके लिए एक ये बहुत बड़ा माध्यम है कि व्यक्ति आनापानसति विपස්සना के माध्यम से धीरे धीरे चित्त को निर्मल करे, निर्मल बनाए,
जैसे अभी 5 मिनट हम लोगों ने ध्यान किया, तो कम से कम 24 घंटे में 5 मिनट तो हम लोग शांत बैठे। कम से कम इस 5 मिनट में हमारे द्वारा वाणी वाचिक अकुशल कर्म और शारीरिक अकुशल कर्म नहीं हुआ, और कोशिश ये भी किया गया कि मन से भी कोई भी अकुशल कर्म ना हो। तो इसीलिए ये जो प्रयास है अ, हर व्यक्ति को करते रहना चाहिए जब भी समय मिले। बुद्ध ने कई बार मतलब कहा है कि काले न धम्म साकच्छा, यानी जब भी व्यक्ति को समय मिले तो धर्म का साक्षात्कार करना चाहिए, धर्म का अभ्यास करना चाहिए। तो ये अभ्यास करने का ही एक कदम है कि हम बुद्ध की बताई हुई शिक्षा, ध्यान साधना को किस तरीके से प्रयोग करके हम अपने मन के जो दुर्गुण हैं, बुरे विचार हैं, उनसे कैसे धीरे-धीरे दूर हो सकते हैं, उसके लिए एक प्रयास किया गया है। जिसके लिए मनीष सर हमारे जो इस कोर्स के कोऑर्डिनेटर हैं, वो हमेशा प्रयासरत रहते हैं, चाहे ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में कार्यक्रम हमेशा करते रहते हैं, और पूरे विभाग के जो भी लोग हैं, सभी लोग अपनी क्षमताओं के अनुसार सहयोग करते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम मैं कोर्स सीखता हूँ, और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे सहकर्मी डॉक्टर प्रियदर्शनी मित्रा मैम ने इस कोर्स की आउटलाइन बहुत ही विस्तार पूर्वक रखी। उसके लिए मैम को बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके बाद विभागाध्यक्ष डॉक्टर चिंतला वेंकट शिवसाई सर ने अपने स्वागत भाषण में विपश्यना की आधुनिक प्रासंगिकता के बारे में बात रखी। उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे जो प्रशासनिक सहयोग देने वाले हमारे आदरणीय वाइस चांसलर सर प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह सर, और संकाय के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर राजीव वार्ष्णेय, जो डीन एकेडमिक्स भी हैं, उनके प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सभी प्रतिभागियों को जो लगभग 40 के आसपास दिख रहे हैं, उन सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया, और जो विश्वविद्यालय का भी जो गतिविधियां हो रही हैं, उनसे भी लोगों तक पहुंचाने का भी एक ये माध्यम है हमारा, ताकि हमारे विश्वविद्यालय के संकाय द्वारा जो भी बौद्ध अध्ययन और पाली भाषा और साहित्य से संबंधित जो भी कोर्स चल रहे हैं, उनका भी एक तरह से थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार हो सके, और विपश्यना से भी लोग लाभान्वित हो सकें। तो उसके लिए आप लोग एक माध्यम का कार्य करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, और मुझे यह अवसर देने के लिए आयोजन समिति का बहुत-बहुत धन्यवाद। मनीष सर को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज्ञानादित्य शाक्य जी। वो हमारे विभाग के हीरो है। हीरो इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने हमारे यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट को एक ऊंचाई पे पहुंचाया है। उनको प्रेसिडेंट पुरस्कार मिला है पाली साहित्य में, और आने वाले समय में हम बहुत ही एक आपके बीच में कोर्स हाइब्रिड मोड में लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें पाली और विपश्यना का कंबाइन स्टडी अभ्यास हम आप लोगों के साथ, और बाकी भी जो लोग आने वाले जो दूसरे जो आपके मित्र हैं या और गहराई में भाषा को सीखना चाहते हैं और साथ साथ में विपश्यना का भी अभ्यास करना चाहते हैं, तो इस प्रकार का भी प्रोग्राम हम बहुत जल्दी ही शुरुआत करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने आभार विधि करके इस प्रोग्राम की जो मूल धारा है उसको हमें फिर से प्रेरित किया, क्योंकि आप कहीं ना कहीं खुद की प्रेरणा से इस कोर्स में ज्वाइन किए हैं, लेकिन जब हम एक विशेष प्रकार की शिक्षा को जब सुनते हैं, जो हमसे ज़्यादा अनुभवी है
या जिन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया है, उनके वचनों को जब हम धम्मपद की गाथाओं के अभ्यास को जब देखते हैं, तो हमें सही में लगता है कि कहीं न कहीं हम सही पथ पे चल रहे हैं। और बहुत कुछ ऐसा भी है, बहुत कुछ गलत हो रहा है। तो गलत और सही का एक हमें जो परीक्षण करने के लिए बुद्ध की शिक्षा या बुद्ध के मार्ग का अनुसरण हम करते आ रहे हैं, और इस इनॉग्रल प्रोग्राम के माध्यम से ज्ञानादित्य शाक्य है या मित्रा प्रियदर्शिनी मित्रा है, हमारे एचओडी डॉक्टर साई जी है। तो कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि इंग्लिश में हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको ज़्यादा इंग्लिश में समझने की ज़रूरत नहीं है। जो भी समझना है आपकी भाषा में समझना है, और अनुभव की भाषा के लिए कोई भाषा की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप किसी को सुनते हैं और अपने अनुभव के आधार पर उसको महसूस करते हैं, तो कहीं न कहीं हम उनसे जुड़ जाते हैं कि वो क्या बताना चाह रहे हैं और हमें क्या सुनना है। तो हमने प्रोटोकॉल मेंटेन किया है, तो हमने तो 10 दिन आप लोग को सिखाएंगे अपना लैंग्वेज बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपका कोर्स तो करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो मित्रा जी ने भी हमें इस कोर्स का जो आउटलाइन है, या शिवसाई जी ने जो मतलब आज के आधुनिक प्रसंग में जो बातें विपश्यना को लेके या मेंटल स्ट्रेस को लेके उन्होंने अपनी जो बातें रखी है, तो हम सभी पार्टिसिपेट की तरफ से या मैं एज अ कोऑर्डिनेटर की तरफ से मैं फिर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। और यहाँ पे हमारा जो ऑफिशियल इनॉग्रल प्रोग्राम का सेशन जो है, यहाँ पे हम समाप्त कर रहे हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद मित्रा जी और शाक्य जी और साई जी, और शायद पासवान जी को भी मैंने जुड़ते हुए देखा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अगर वो जुड़े हैं या शायद लेफ्ट हुए होंगे। तो अभी आप चाहो तो आप कंटिन्यू रह सकते हैं, अन्यथा फिर हम अभी नया जो हमारा जो आज का टॉपिक है, क्योंकि हमारे पास में से 15 से 20 मिनट है, क्योंकि अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस है 10 दिन का, तो आज के दिन जो बात मैं रखने वाला हूँ उसको मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, और उसके बाद फिर हम उसके लिए उसको लेके कुछ मैं बात करने जा रहा हूँ। ठीक है मनीष जी, हाँ जी, हाँ जी, यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। दिखाई दे रहा है? हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ जी, हाँ। हाँ। तो आज आज के दिन का जो हमारा कंटेंट है, या जो थ्योरेटिकल हमें कुछ बातें समझ के लेनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम मनुष्य है, और मनुष्य में दो बातों का स्वभाव होता है, सोचना और करना। सोचना और करना, और करना और सोचने का हमारा जो द्विविध गुण है, या ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जीवन के ये दो पहलू हैं। हम सोचते हैं और करते हैं, और कभी-कभी करते हैं बाद में सोचते हैं। तो इसमें कहीं न कहीं हमारी जो संतुलन है, वो बहुत कम रहता है। अगर इस संतुलन को अगर हम इस कोर्स में बनाए नहीं रखेंगे, अगर हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, और हमें हमारी थॉट प्रोसेस अगर क्लियर नहीं होगी कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सही में आज के आधुनिक जो हमारा जीवन है उसमें कैसे हमने विपස්සना को समझना चाहिए। तो अगर विचार में अगर हम स्पष्ट नहीं है, तो हम कितना भी अच्छा कार्य करेंगे, कितना भी हम ध्यान सिखाएँगे, कितना भी हम ध्यान करेंगे, लेकिन उसकी गहराई हमें प्राप्त नहीं होगी। या ऐसा कह सकते हैं कि उसके भीतर में जो होने वाली जो अनुभूति जो है, उससे हम हमेशा वंचित रहेंगे। तो एक पक्ष है। कभी-कभी हम बहुत सोचते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं कि विपස්සना ऐसी है, विपස්සना वैसी है। स्ट्रेस के बारे में भी बहुत कुछ हम जानते हैं कि हमारे शरीर पे किस प्रकार के उसका परिणाम, दुष्परिणाम हो रहा है। लेकिन वो प्रैक्टिकल कुछ पता नहीं होता है। वो सही में क्या हो रहा है, कैसे उसको देखें, समझें। तो वो भी एक सोचना या एक प्रकार से जानकारी रखना, वो भी एक प्रकार से अधूरी शिक्षा है।
या सिर्फ आचरण करना, वो भी एक अधूरी शिक्षा है। जब तक दोनों का मेल नहीं होता है, दोनों का इंटरेक्शन नहीं होता है, या दोनों का हम आगे पीछे उसका इस्तेमाल नहीं करते कि पहले सोचिए बाद में करिए, या अगर आपने कर लिया तो बाद में सोचिए कि आपने क्यों किया, कैसे किया, या पहले सोचिए आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं हमें अपनी जो क्षमता है, इस कोर्स का जो बेनिफिट है वो आपको मिल सकता है, और इसलिए इसी के अकॉर्डिंग या इसी को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। तो इसलिए हमारा जो सुबह का जो सेशन रहेगा वो ज़्यादा प्रैक्टिकल मोड रहेगा, कुछ आपके अनुभव को आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारे इवनिंग का सेशन रहेगा 7 to 8:30, उसमें हम कुछ टॉपिक जो आपके ध्यान से रिलेटेड है या ध्यान को और गहराई में ले जाने के लिए हमें मदद कर सकते, साइकोलॉजिकली या स्पिरिचुअली या साइंटिफिकली, हाँ, तीनों अप्रोच के साथ हमें उसके बारे में प्रॉपर जानकारी लेके थॉटफुल होना है, हाँ, क्लियर होना है, ताकि हम जब भी सुबह ध्यान करेंगे या फिर आप इस कोर्स के बाद में भी जब आप ध्यान करोगे तो आपको पूरी तरह से पता होगा कि आप क्या और क्यों कर रहे हैं। तो हमारे इस पूरे 10 दिवसीय कोर्स का अगर एक ऑब्जेक्टिव अगर हम देखते हैं, तो ऑब्जेक्टिव एक प्रकार से हमारा डायरेक्शन है कि हम उस डायरेक्शन से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। जैसे कि अगर हमें सफ़र करना है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है, तो हमें 2 चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि मुझे कहाँ पे जाना है और किसके मदद से जाना है। मेरे पास में क्या है जिसके वजह से मैं उस जगह पे पहुँच सकता हूँ जहाँ पे मुझे जाना है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे पास में साधन होता है वो है मैप। मैप का होना और मैप को रीड करना अगर आपको आता है तो फिर आप तय कर सकते कि आपको पैदल जाना है, गाड़ी से जाना है, ट्रेन से जाना है, एरोप्लेन से जाना है, आपके पास में कितनी कैपेसिटी है खर्चा करने की, कितने समय में आपको वहाँ पे पहुँचना है, सब कुछ आप डिसीजन ले सकते हैं अगर आपके पास में मैप है और मैप को रीड करने की आप में क्षमता है। अगर आपके पास में दोनों नहीं है, दोनों में से एक है, तो फिर आप जिस जगह पे आप पहुँचना चाहते हैं, तो हम किस जगह पे पहुँचना चाहते हैं? शांति की जगह पे पहुँचना चाहते हैं, हम सुख की जगह पे पहुँचना चाहते हैं, हम अपने तनाव मुक्त अवस्था में पहुँचना चाहते हैं। कहाँ से? तनाव में से, समस्या में से, दुख में से, हमारे भय में से, हाँ, भय में से हमें निर्भयता में पहुँचना है, दुख में से हमें सुख में पहुँचना है, अशांति में से शांति में पहुँचना है, तनाव में से हमें तनाव मुक्त अवस्था में पहुँचना है। तो अगर वहाँ पे पहुँचना है तो हमारे पास में एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए कि भाई हम किस उद्देश्य को साथ में लेके वहाँ पे जाना चाहते हैं। तो ये 4 उद्देश्य है, इसको लेके आप उसको बाद में पढ़ सकते हैं, थोड़ा और चिंतन कर सकते हैं। मैं संक्षिप्त में 4 उद्देश्य को लेके आपके सामने मैं बता रहा हूँ कि इस कोर्स के माध्यम से हमने अपनी जागरूकता का विकास करना है। जैसे कि हमने सुबह का ध्यान किया था आनापानसति, वो जागृति का विकास करने के लिए है, सजगता का विकास करने के लिए है, हाँ, जिससे हमारा तनाव कम होगा और हम शरीर और हमारी संवेदना है, मन की प्रक्रिया है, उसके साथ में हम सहज हो सकते हैं और हमारा धीरे धीरे जो शारीरिक और मानसिक या वैचारिक जो हमारा विकास नहीं हो रहा है उसी को तनाव कहते हैं। तनाव का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कुछ चीज़ रुकी हुई है, जहाँ पे कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है, जहाँ पे कुछ समस्या है, उसी समस्या से ऊपर उठना ही एक प्रकार की सजगता है। तो ये कोर्स हमें अपने सजगता के हमारी जो क्वालिटी है या हमारे जो गुण है सजगता का, उसका विकास करने के लिए हमें एक कोर्स मदद करेगा। दूसरा है कि जो वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक समझ है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा है कि हमारी समझ और हमारा आचरण दोनों साथ में हमें लेके चलना है, और वो तब आचरण में आ सकता है कि जब उस समझ को हम अलग अलग पहलू से समझें। अभी हम एक विशिष्ट पहलू से देखते हैं, जहाँ से हमें जानकारी मिली है, घर से हो या किसी गुरु से या किसी शिक्षा से, तो उसी जानकारी को हम पूर्ण समझते हैं, लेकिन वो पूर्ण सोच नहीं है। हमें थोड़ा और
आज के वैज्ञानिक क्षेत्र में किस प्रकार से उसकी परिभाषा की जा रही है, किस प्रकार से समझाया जा रहा है, हमारे ब्रेन को कैसे समझाया जा रहा है, ब्रेन से आने वाली जो रिलीज़ होने वाली हार्मोन्स है जिसकी वजह से स्ट्रेस रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज़ होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होता है। तो ये चीज़ें हमें शायद पता होगी या पता नहीं होगी। हाँ, किसी को हो सकता है कि आप में से कोई अभ्यास कर रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे बीच में डॉक्टर भी सहभागी है या आप लोगों में से भी अभ्यासु हो सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम ज़्यादातर लोगों की बात करें कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो इस कोर्स के माध्यम से थोड़ी जानकारी हमें हमारे इस कोर्स को मददरूप हो सके और हमारी समझदारी बढ़ा सके, इसलिए ये भी उद्देश्य है कि हम वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक समझ को भी यहाँ पे हमें थोड़ा विकसित करना है। इसका मतलब हमारे मन को थोड़ा खुला रखना है। जो हमें पता है उतना तो ठीक है, लेकिन पूर्ण नहीं है। ठीक होना और पूर्ण होने में फ़र्क है। हमें पूर्णता की तरफ जाना है। जो हमारे पास नॉलेज है उसको आप ठीक कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण नहीं कह सकते। अगर पूर्ण कहोगे तो उससे आगे जो भी अच्छा आपके पास में आएगा उसको आप कभी स्वीकार नहीं कर पाओगे। हाँ, तो अपने मन को थोड़ा खुला रखिए और जिस समझ को और हम थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, दूसरे जो उसके पहलू है समझने के, उसको भी हम इस कोर्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद है कि आत्मनियम और संतुलन। आत्मनियमन मतलब सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ, जैसे कि हमने सुबह आनापानासति का ध्यान किया तो सेल्फ डिसिप्लिन है। हाँ, स्वयं की जागृति, वर्तमान की जागृति, और वर्तमान में जो हमारा शरीर है, हमारी सांस है, हमारे विचार है, और वही धीरे धीरे जब हम वेदना और मन और भावनाओं की तरफ जाते हैं तो वही विपස්සना का एक अनुभव हमें होने लगता है। और हमारा जो संतुलन जो है स्वयं का और विश्व का और स्वयं का, मतलब अंदर का और बाहर का और अंदर का, दोनों का संतुलन ही एक प्रकार से एक संपूर्ण व्यक्ति का आचरण है, संपूर्ण व्यक्ति होने का मार्ग है। अगर हम संपूर्ण व्यक्ति होना चाहते हैं तो हमारे पास में संतुलन, मिडल पाथ होना चाहिए। हाँ, मिडल पाथ पे चलते हुए ही हम संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। फिर वो हमारा सुख हो, सफलता हो या किसी भी प्रकार का हमारा कार्य हो, उस कार्य में अगर हम संतुलन रखते हैं तो ही हम आगे सफल हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमें संतुलन बनाना है, संतुलन के प्रयासों को आगे बढ़ाना है। चौथा जो उद्देश्य जो है वो है कि हमारा जो मानसिक कष्ट है, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं, चिंता कहते हैं, भय कहते हैं, हाँ, या भावनिक तौर पे जो भी हमारी अशुद्ध भावना है, उसमें सुधार लाना है, जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, है ना, उसमें सुधार लाना है, ईक्यू में सुधार लाना है। और पांचवा और महत्वपूर्ण जो है वो है जीवन में एकीकरण और एकरूपता और करुणा का अनुभव करना है। हाँ, जब हम स्वयं से जुड़ जाते हैं, जब हम स्वयं के शुद्धता के संपर्क में आते हैं तो औरों के प्रति ऑटोमेटिक हमारे मन में मैत्री और करुणा का भाव उत्पन्न होता है। अभी हमारे मन में द्वेष आता है, भय आता है, चिंता आती है, लोभ आता है जब हम औरों को देखते हैं। हाँ, क्योंकि हम अपने आप से नहीं जुड़े हुए हैं, हमारे भीतर की शुद्धता का एहसास हमें नहीं हो रहा है। जैसे जैसे हमें ध्यान करने से या जो भी हम अभ्यास करने वाले हैं उससे होते रहेगा, वैसे वैसे औरों के प्रति हम संवेदनशील होते रहेंगे और वही एक प्रकार से समाज का बदलाव, मानवता का कार्य। हाँ, अगर हम मनुष्य है और मनुष्य के कार्य के लिए, हाँ, हमारी भावना अगर करुणा से पूर्ण है तो ही हम आगे अपनी जो जीवन यात्रा है और सुख से और आनंद से हम आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि हम सामाजिक मनुष्य प्राणी हैं। और इसलिए हमें जितना हम अपना स्वयं का ध्यान रखते हैं या रखेंगे उतना ही कहीं ना कहीं हमें औरों का भी ध्यान रखना है। इसमें हमें बैलेंस बना के रखना है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जिस 5 उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को डिज़ाइन किए हैं, और हमारा कोर्स का जो टाइटल जो है वो है विपस्सना बेस्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे इस शब्दों को अगर हम देखते कि विपस्सना क्या है, ये हमारा मार्ग है। तनाव क्या है, ये हमारी समस्या है।
और मैनेजमेंट क्या है? ये टेक्निक है। हाँ, तो जब हम अपने मार्ग से चलते हुए अपनी समस्या का समाधान करते हैं, वही इसका रिजल्ट है, इस पूरे कोर्स का। यस यस वी आपको इसका पीपीटी दिया जाएगा, इसलिए आप चिंता ना करें। और पीपीटी के साथ में लास्ट में इसमें 5 क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, एक एक सेंटेंस के, जो इसी कंटेंट में से उसके जवाब आपको ढूंढने हैं या उसको अभ्यास करने हैं। मैं बताते समय तो बताऊंगा ही लेकिन आखिरी जो हर एक दिवस का जो हमारा टॉपिक रहेगा, उसमें 5 वन लाइन के क्वेश्चंस रहेंगे, जिससे आपका एक इंटरेक्शन बढ़ेगा कि आपने क्या सुना, क्या समझा और आप किस प्रकार से उसके जवाब दे रहे हैं। क्योंकि ये कोर्स यूनिवर्सिटी बेस है, तो यूनिवर्सिटी के साथ में एक कोर्स को थोड़ा हमने डिज़ाइन किया है ताकि आप सुनने में भी इंटरेस्ट रखें, थोड़ा सोचने में भी आप आगे आए और थोड़ा लिखने में भी आगे आए कि आप अपनी अनुभव को आप आपके स्तर पे जो समझा है उसको आप लिख के बताना चाहते हैं कि मुझे समझ में आया है। तो इस प्रकार से इसका पूरा आयोजन किया गया है, इंटरैक्टिव रहेगा। आने वाले सेशन में आप आपके तरफ से सवाल भी पूछ सकते हैं या कुछ ऐड भी कर सकते हैं। अभी आज का पहला सेशन है, टाइम भी हो रहा है, इसलिए ज़्यादा हम इंटरैक्टिव नहीं रख रहे हैं। लेकिन कल से जो हमारा सेशन रहेगा, ये इसका जो कंटेंट जो है आज के टॉपिक का हो सकता है कि कल भी कंटिन्यू करें। तो आज हम इतना देख सकते हैं कि तनाव और माइंडफुलनेस क्या है। आज की जो ग्लोबल रिपोर्ट है, रिसर्च है, तनाव को किस प्रकार से एक्सपोज करता है, बताता है। एक प्रकार से ये एक मुख्य महामारी बताई जाती है, गंभीर महामारी बताई जाती है। जिस प्रकार से कोरोना आके गया है या कोई युद्ध होता है या बहुत बड़े आपदा आ जाती है, उसी प्रकार से तनाव आज एक प्रकार से महामारी बीमारी के रूप में हर एक मनुष्य को प्रभावित कर रही है। और उसका प्रभाव सिर्फ वयस्क पे नहीं है, बल्कि युवाओं पे भी आ रहा है। और 18 से 34 या 35 वर्ष के युवा में इसका ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। और प्रभाव यहाँ तक पहुँच जाता है कि आज के युवा की बहुत सारी हमें घटना, सुसाइड है, एंग्जाइटीज़ है, क्राइम है, इन सभी प्रवृत्ति में जो बच्चे आ रहे हैं, या ड्रग्स है, नशा है, तो ये सभी कहीं ना कहीं इसका जो रूट कॉज जो है वो तनाव है। कि तनाव को हम जितना सिंपल समझते हैं कि तनाव होता है तब भी चलता है, नहीं होता है तब भी चलता है। जब हम डॉक्टर के पास में जाते हैं तब हर बीमारी के बीच में डॉक्टर यही पूछता है कि आप स्ट्रेस में थे क्या? आपको स्ट्रेस है। लेकिन स्ट्रेस ना डॉक्टर को समझ में आता है कि सही में कौन सा स्ट्रेस है, ना पेशेंट को समझ में आता है कि सही में मैं स्ट्रेस में हूँ या नहीं हूँ। लेकिन बातें तो दोनों तरफ से हमें सुनने को मिलती है और हम भी सुनते रहते हैं कि स्ट्रेस है, लेकिन सही में स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेस किस प्रकार से हमारे बॉडी को, माइंड को, हमारे इमोशंस को, हमारे रिलेशनशिप को या हमारे आउटकम्स को या हमारे प्रोडक्टिविटी को किस प्रकार से वो इम्पैक्ट कर रहा है। जब हम उसके कुछ रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, सर्वे पढ़ते हैं, कुछ मैं रिसर्च पेपर भी मैं आपको इस मेरे हमारे स्टडी ग्रुप में मैं शेयर करूँगा। 1-2 आर्टिकल मैंने भी लिखे हुए हैं लास्ट अभी दिसंबर और जनवरी में, जो माइंडफुलनेस और हमारे ब्रेन के मैकेनिज्म में कैसे वो इम्पैक्ट कर रहा है। और अभी आपके इस कोर्स के माध्यम से भी हम रिसर्च पेपर पब्लिश करने वाले हैं, और इसलिए मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट किया है और आपके लिए कंपलसरी है कि वो प्री सर्वे फॉर्म आप ज़रूर भरिए सोने के पहले। ये आपकी एक एक्टिविटी है, एक सेल्फ आपका होमवर्क कह सकते हैं। इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। इग्नोर करने से हमारे पास में डेटा अगर कम आएगा या फिर सही नहीं आएगा, तो इसमें से रिसर्च पेपर आउटकम्स दिखाना बड़ा अनइथिकल हो जाएगा। और इतना आप अगर परिश्रम कर रहे हैं 10 दिन इस कोर्स में ज्वाइन होने के लिए, तो निश्चित उस सर्वे फॉर्म को सोने के पहले ज़रूर फिलअप करके अपना कमेंट्स लिखिए कि मैंने भरा हुआ है। तो ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट 2025 में ये बताती है कि भारत का जो युवा जो है 60वें स्थान पर है। मतलब हमारा जो माइंड हेल्थ रिपोर्ट जो है, इतने हम पीछे हैं। माइंड हेल्थ में हमारी जो कैटेगरी जो है वो ऐसा कह सकते हैं कि हम हेल्दी नहीं है। हमारा जो
युवा है या हमारी जो सिटीजन जो है, भारतीय जो लोग हैं, हाँ, जबकि जो भी तनाव दूर करने के लिए जितने भी टूल्स, जितने भी संसाधन विकसित हुए हैं, वो भारत के भूमि से ही हुए हैं, भारत के नॉलेज सिस्टम से ही हुए हैं, जिसको हम आज पूरे साइकोलॉजी थेरापी हो, साइकोलॉजी हीलिंग हो, साइकोलॉजी जितने भी टूल्स सिखाए जाते हैं, वो सभी मेडिटेशन के आधार पर या बुद्धिज़्म के या भारतीय दर्शन परंपरा के आधार पर उसका विकास किया जा रहा है। और आज पूरे विश्व में मेडिटेशन को एक मेडिसिन के तौर पे या एक थेरापी के तौर पे या काउंसलिंग के तौर पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम स्ट्रेस का जितनी बात करें, आने वाले हर एक सेशन में कुछ न कुछ स्ट्रेस के बारे में और अधिक जानकारी या आपको नॉलेज दिया जाएगा। लेकिन अगर हम सामान्य तौर पे अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं, तो उसके मुख्य कारण जो है आजकल जो हमें या युवाओं को या हमें भी जो सोशल मीडिया की जो लत लगी है, एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया, हम हमेशा सोशल मीडिया के साथ में एंगेज रहते हैं। वहाँ से आने वाली जानकारी को ही हम सच मानते हैं, उसके साथ में हम कभी भी माइंडफुल नहीं होते हैं कि जो जानकारी आई है सही में सच है या सच नहीं है, सही भी रिलेवेंट है या नहीं है, उसका बेसिक सोर्स क्या है। कभी भी हम क्वेश्चंस अपने आप से अवेयर नहीं होने की वजह से हम पूछते नहीं हैं और तुरंत हम उस जानकारी को अडॉप्ट कर लेते हैं और औरों को भी हम सर्कुलर करते हैं। और वहाँ से एंग्जाइटी, स्ट्रेस और बहुत सारी जो सोशल एक प्रकार से डिसहार्मनी जो है या एक प्रकार से हेट है या जो भी हम आगे उसके बारे में जितने भी उसका रिज़ल्ट देखते हैं, तो एक सबसे बड़ा मुख्य कारण है जो हमें समझना है। नींद की कमी होना, हमेशा काम में व्यस्त रहना, ऑलवेज ऑन द काम, ऑलवेज ऑन द वर्क, हाँ, 8 घंटे के अलावा भी हम काम करते रहते हैं। आजकल का पूरा फैशन ही जो आईटी सेक्टर हो या कॉर्पोरेट सेक्टर हो या जो भी अर्निंग का जो एक पैटर्न बना है, मैक्सिमम वर्क। अभी मैक्सिमम वर्क में खुद के लिए या सेल्फ के लिए कुछ भी टाइम अगर नहीं मिलेगा, तो निश्चित ये स्ट्रेस अपने आप इम्प्रूव होगा, बढ़ेगा और उसका इम्पैक्ट उसके प्रोडक्टिविटी में भी रहेगा, उसके लाइफ में भी रहेगा, उसके रिलेशनशिप में और पूरे सोसाइटी और नेशन में रहेगा। तो इस प्रकार से ये मुख्य कारण में हम उसको देख सकते हैं। आगे और भी हम कुछ कारण का अभ्यास करेंगे, लेकिन सामान्य तौर पे जो हमें ध्यान में आता है कि ये इस प्रकार से हमारा स्ट्रेस जो है एक हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। अभी जीवन का हिस्सा इसलिए बना है क्योंकि हमने स्ट्रेस को उस अप्रोच से कभी देखने का प्रयास नहीं किया जिस अप्रोच से हम हर चीज़ देखते हैं। अगर आप कोई मोबाइल ख़रीदने जाते हैं या कोई कपड़ा ख़रीदने जाते हैं या किसी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो हम कितने अवेयर होते हैं उसके ब्रांड के बारे में, प्राइस के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में। लेकिन हमारे जीवन में इतना कुछ हार्मफुल है स्ट्रेस, उसको हम कभी भी उसकी क्वालिटी नहीं देखते। सही में मेरी क्वालिटी स्ट्रेस की क्या है, मैं कितना समझ पा रहा हूँ, कितना मैं स्ट्रेस से मैं अपने लाइफ में या मेरे जीवन में काफ़ी कुछ मैं लेके आ रहा हूँ। जब डॉक्टर बताते हैं तब हमें महसूस होता है कि सही में मैं स्ट्रेस में हूँ या नहीं हूँ। हाँ, और उसके बाद में भी हमें स्ट्रेस को पहचानने का हमारे पास में कोई सही टेक्निक या सही हमारी जानकारी नहीं होने से हम कभी भी स्ट्रेस को जान नहीं पाते और हम उसके विक्टिम होने लगते हैं। और इसलिए आज अगर हम विज्ञान का युग देखते हैं कि पूरी तरह से तनाव से भरा हुआ है और उसकी जो प्रतिक्रिया जो है या उसका जो असर जो है वो हमारे शरीर पर, मन पे और भावनाओं पे और हमारे जो भी आचरण हम कर रहे हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में हमारा जो बिहेवियर है, हाँ, उसमें इम्पैक्ट होता है। ऐसा रिसर्च बताते हैं जो हमारा ब्रेन जो है 2 मोड में काम करता है, फाइट और फ्लाइट मोड में। जो भी इंसिडेंट हमारे सामने आता है या जिससे भी हम काम करते हैं या जो भी हमारे साथ में हमारे जो 5 इंद्रियों के माध्यम से जो विषय हमारे कांटेक्ट में आता है, स्टिमुलेट करता है या हमें मोटिवेट करता है और वैसे स्ट्रेस रिलीज़ होता है। जैसे कि आपने कुत्ते को देखा तो तुरंत वहाँ पे स्ट्रेस आ जाएगा, कुत्ता काटेगा क्या, काटने वाला है क्या, या ऐसी जो भी चीज़ है जो आपके सामने डिसलाइक होती है या एक सडनली आपके सामने कोई घटना घटित होती रहती है, तो वहाँ से हमारा जो ब्रेन जो है एक तो भागता है या फिर उसके साथ में लड़ता है।
लेकिन इस दोनों के बीच में जो मोड है वो है माइंडफुलनेस मोड है। ना हमें भागना है, ना उसको भगाना है, ना उससे लड़ना है। जो मिडल वे जो है वो माइंडफुलनेस वे है, जो हम कल के मेडिटेशन में उसको और थोड़ा गहराई में हम देखेंगे। हाँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि कोई स्थिति जैसे अचानक का आवाज़ सुनना, या परीक्षा इंटरव्यू में कुछ दबाव आ जाता है, या किसी के साथ मतभेद होता है। हाँ, तो हमारे शरीर में एक्चुअल में क्या होता है उसका हम जो साइंटिफिक अप्रोच जो है कल के टॉपिक में उसको हम ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास जो अकॉर्डिंग हमारा जो शेड्यूल है, आप लोगों का भी शेड्यूल है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अपने डेली शेड्यूल को ज़्यादा डिस्टर्ब करें, क्योंकि एक कोर्स हमारा 10 दिन तक चलने वाला है। और आज का जो अभी का जो सेशन रहा है इसमें थोड़ा इनॉग्रल या हमारी फैकल्टी भी ज्वाइन हुई थी, इसलिए हमारा थोड़ा समय उसमें गया है। और कल हम इस मॉडर्न रिसर्च अप्रोच को कल उसको हम जो एग्जाम्पल के तौर पे या और कुछ मैंने आगे कुछ उसके पॉइंट्स निकाले हैं वो जो मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। आप भी थोड़ा पढ़िए और समझने का प्रयास करिए, और कल के इवनिंग सेशन में इसको फिर से मैं आपको रिवाइज़ करूंगा, और कुछ और इसकी गहराई कुछ बातें हैं मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आप भी समझने का प्रयास करिए और देखिए सही में स्ट्रेस क्या है और किस प्रकार से हमारे ब्रेन में या हमारे हार्मोन सिस्टम को या हमारे ऑर्गन को किस प्रकार से इम्पैक्ट करता है, और किस प्रकार से वहाँ से हमें नया रास्ता ढूंढना है जो जागृति का है, जो ज्ञान का है। जागृति और ज्ञान का रास्ता ही हमें सभी मुसीबतों से बचा सकता है। अगर मैं अपनी अंतिम बात करते हुए अगर आपसे मैं बात करूं, या आप भी जितने भी इस विश्व में जितने भी मेडिसिन है या बीमारी है या जो भी हमें बचाना चाहती है, हम बचना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि वो हमारे दुख के भय को बचा सके। किसी बीमारी से शायद हमें वो बाहर ला सकती है, लेकिन उस बीमारी के भय से और मृत्यु के भय से बाहर लाने वाली कोई दवाई नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। आने वाले समय में बहुत सारे रिसर्च होंगे, अभी भी एआई आ चुका है, लेकिन फिर भी उसमें वो क्षमता नहीं है। सिर्फ एक ही बात में क्षमता है, वह है जागृति और ज्ञान। जिस व्यक्ति के पास जागृति है, जागृति का विकास करने का मार्ग है, और उससे आने वाला बोध, ज्ञान, प्रज्ञा, यही अंतिम मार्ग है, और ये भी पहला ही मार्ग है। अगर पहले से अगर इस मार्ग पर हम चल पड़ेंगे तो कम से कम हमें हमारे शरीर का बीमारी होगी तब भी हम डरेंगे नहीं, क्योंकि बीमारी से ज़्यादा बीमारी होती है। कोरोना में जितने लोग कोरोना से नहीं मरे, उतने ज़्यादा लोग कोरोना के डर से मरे। ये सिर्फ तभी का स्टैटिस्टिक्स नहीं है, अभी का भी वही स्टैटिस्टिक्स है। जो भी लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और वापस नहीं आते हैं, तो 50% जो है डर से मरते हैं। उसमें हम भी हो सकते हैं। अगर हम नहीं होना चाहते हैं और औरों को भी उस मार्ग से बचाना चाहते हैं, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होने की जो प्रक्रिया है और ज्ञान से जीवन को देखने की जो अनुभूति है, ये हम स्वयं सीखें। बहुत ही सरल है, समझने में या बताने में थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन जब आप खुद करने लगोगे तो बहुत सहज है। सहज इसलिए है क्योंकि मैं अगर आप बताओ कि सांस ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा जाता है, वैसा जाता है, शरीर में ये करता है, वो करता है, तो हो सकता है कुछ बातें आपको समझ में आए, कुछ समझ में नहीं आए। लेकिन अगर आपको श्वास को देखने के लिए बोले तो बहुत सरल है। सांस आपकी, आप क्यों नहीं देख सकते? देखना सरल है। हाँ, सांस को देखना बहुत सरल है। हाँ, अगर आप उस सांस को देखते 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 आगे बढ़ोगे तो आप जागरूक होते जाओगे। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, हमें साइंटिस्ट नहीं होना है। हाँ, हमें बायोलॉजिस्ट नहीं होना है, हमें सर्जन नहीं होना है। हमारे सांस को और बॉडी को देख के हमें हमारे बॉडी और हम जीवन के प्रति जो गलत धारणा है, भय है, दुख है, उससे मुक्त होना है। हमारा डॉक्टर हमें स्वयं होना है। उस अर्थ से नहीं कि सब कुछ हम अपने शरीर को ठीक करें। अगर ठीक नहीं भी होता है, फिर भी उस भय से बाहर आ जाए।
क्योंकि हमारा शरीर कभी ठीक होने वाला नहीं। जरा व्याधि मरण से कोई ठीक हो सकता है क्या? मैंने ऐसे सारे डॉक्टर को सुना है कि जो कार्डियोलॉजिस्ट का डॉक्टर था, उसको कार्डियोलॉजी की बीमारी, उसको हार्ट अटैक हुआ। तो खुद भी अपनी बीमारी से खुद को बचा नहीं सकता है। हाँ, लेकिन भय से बचा सकता है। तो भय से कौन बचाएगा? कैसे बचाएंगे? कैसे बचेंगे अपने आप को और औरों को? तो यही है जिसका सराव हम 10 दिन में करने वाले हैं, जिसको जागृति, सजगता और ज्ञान का मार्ग। तो मैं ज़्यादा बात लंबी नहीं लेते हुए, क्योंकि हमारा समय वैसे भी 10 मिनट ज़्यादा हो गया है, तो इस सेशन को पूर्ण करने के लिए मैं टी.आर. गौतम जी को वेलकम करता हूँ कि वो आभार विधि करके आप सभी का धन्यवाद करते हुए आज का सेशन का समापन करें। टी.आर. गौतम जी, मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद। सभी आवाज आ रही है? आ रही आ रही। सर्वप्रथम डॉक्टर मनीष सर जी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इतने गूढ़ विषय पर और बहुत ही सरल भाषा में हमको समझाने का प्रयास किया, और मैं ये मानता हूँ कि हम सब ने कुछ न कुछ तो अवश्य समझा होगा, और इसको समझते हुए हम इस कार्यक्रम को निरंतर बनाए रखेंगे, ऐसी आशा और विश्वास में रखता हूँ। और सभी का मैं अपने दिल की गहराई से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि। आपका स्वास्थ्य बना रहे, अच्छी तरह से आप नींद लीजिए। कल सुबह हम 7 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे घर से अपने समय के साथ, और आलस को थोड़ा कम करते हुए, क्योंकि सभी लोग समय पे जग ही जाते होंगे। अगर कुछ लोग नहीं जग रहे तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर जो नहीं भी जुड़ते हैं, या कुछ आपको लगता है कि आपका मित्र नहीं जुड़ पाया है, तो उसका रिकॉर्डिंग भी किया जा रहा है, तो उस रिकॉर्डिंग को भी आप अपने मित्रों को दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।